Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up chapter 7 from your literature book. The title of this chapter is Under the Fig Tree, written by Wangari Maathai. Now this is an extract from Unbored, a memoir or the autobiography of Wangari Maathai. Now talking about the author, Wangari Maathai was a Kenyan environmental and political activist. She founded the Green Belt movement and was the 2004 Nobel Peace Prize laureate. The Challenge for Africa, Replenishing the Earth, and the Green Belt movement are some of her literary works. Her passion for protecting the environment is seen in her writing. So now let us start reading from the text. Say if these statements about trees are true or not true, and why. Trees clean the air. We all know that trees gives us oxygen and they absorb carbon dioxide, right? So in a way they clean the air or purify the air by giving us oxygen, which we human beings and all the animals need to survive. Secondly, they help prevent soil erosion. Their roots help in soil erosion, right? And they provide food in the form of fruits and vegetables and grains. We all got all these things, all these eatables from trees. And they provide habitat for wildlife and birds. Yes, we know that. And lastly, cool the city and streets. So all these things are true about trees, and trees are the reason why life is possible on the planet Earth. Without trees, life wouldn't have been possible on Earth. We all know that, right? Now, can nature become almost magical with a life of its own? The author finds that magic as a little child near an old fig tree and a gentle stream of water. Now, when the author was a small child, she used to visit a small stream. Stream, you know, it's a narrow river. Okay, in her village, there was this narrow river which she used to visit quite often, and beside that, there was a old fig tree. And she used to find magic in that tree and that gentle stream of water. And in this extract from her autobiography, she has shared her experience as a small child. Collecting firewood for the house was a frequent activity, and I would often help my mother to do it. Now, as a child, she used to live in a village in Kenya, South Africa, and she used to sent out to collect firewood. जब भी खाना वगैरह बनाने के लिए आपने देखा होगा विलेज में, तो फायरवुड इकट्ठी की जाती है, छोटी छोटी लकड़ियाँ, ट्विग्स एंड ब्रांचेस, ठीक है, जो ड्राइड अप वुड होता है वो इकट्ठी की जाती है ताकि उसको जला के खाना बनाया जा सके. ओके, सो एज अ चाइल्ड her mother used to send her to collect firewood. The country was dotted with hundreds of huge mugamo और wild fig trees. अब जो वो कंट्री साइड था या जो पूरी कंट्री थी, वहाँ पे बहुत सारे फिग ट्रीज होते थे, वाइल्ड फिग ट्रीज. देयर bark was the color of elephant skin. जो उसकी जो ट्री की बार्क थी वो उसका कलर एलिफेंट स्किन जैसा था, मतलब it was like grayish black in color. They had thick, gnarled branches with roots that hung down, anchoring the tree to the ground. और उस ट्री वो जो फिग ट्रीज होती थी काफ़ी ओल्ड होती थी, तो उनकी जो ब्रांचेस होती थी वो ट्विस्टेड होती थी, ओके, थिक एंड ट्विस्टेड. और उनकी जो रूट्स होती थी वो ऊपर से नीचे की तरफ, दे यूज टू हंग डाउन, ओके, ऐसे नीचे की तरफ लटकती रहती थी, एंकरिंग द ट्री टू द ग्राउंड, जिससे कि वो ट्री को
ग्राउंड से जोड़े रखें, ठीक है. दे यूज टू प्रोवाइड एन एंकर or a support system to the tree. The huge leaves of this fig tree cast a great green shady region, a canopy beneath the tree. और जो वो फिग ट्री इतनी बड़ी होती थी कि उसकी जो शैडो है वो एकदम एक, जो उसके लीव्स होते थे बड़े बड़े, वो एकदम कैनोपी की तरह बन जाते थे. जैसे आपने शादियों में देखा होगा ना, शादी में जो शामियाना लगता है, ओके, या जो टेंट आप कह सकते हो, तो जैसे कई बार फूलों का बनाते हैं या कपड़े का बनाया जाता है, ठीक है, तो वैसा ही एकदम शामियाना टाइप ये लगता था, उसका जो शैडो थी. मैनी स्मॉलर प्लांट्स कॉल्ड अंडरग्रोथ ग्रू इन द कैनोपी. और उसकी छाँव में, उस ओल्ड फिग ट्री की छाँव में, उसके जो पत्ते थे उसके पत्तों के नीचे अंडरग्रोथ, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते थे उनको अंडरग्रोथ कहते हैं, तो वो उगते थे. दिस ट्रीज कैनोपी वॉज प्रोबेबली 60 feet in diameter and produced numerous fruits that birds loved. जो फिग होता है उसका जो फ्रूट होता है इट्स लाइक पियर के जैसा होता है, इट्स पियर शेप्ड, ओके. और ये ट्री इतना ह्यूज था कि उसका जो कैनोपी थी इट वाज ऑलमोस्ट 60 feet in diameter. So you can imagine how huge it was, and it used to produce numerous fruits which the birds used to love. When the fruit was ready, you would find hundreds of birds feeding on them. और जैसे ही फ्रूट्स जो है वो राइप हो जाते थे, पक जाते थे, तो बहुत सारी बर्ड्स आके they used to feed on these fruits. The undergrowth of the fig tree was also very fertile because people did not cut anything near those trees. और साउथ अफ्रीका के या कीनिया के लोग ये मानते थे कि ये जो फिग ट्रीज़ हैं दे आर क्वाइट सेक्रेड. उनको बहुत पवित्र समझा जाता था, उन्हें होली ट्रीज़ समझा जाता था. सो पीपल नेवर यूज टू कट दोज ट्रीज़, फिग ट्रीज़. ना ही उनके नीचे जो उगते थे छोटी छोटी अंडरग्रोथ स्मॉलर प्लांट्स, उनको भी नहीं डैमेज किया जाता था. ओके. ऑल दिस एडेड टू द ट्रीज चार्म एंड मिस्ट्री. और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग हो जाती थी, जो भी वो ट्रीज़ थी, ओल्ड फिग ट्रीज़, ओके. एंड दे यूज टू लुक क्वाइट मिस्टीरियस ऑल्सो. When my mother told me to go and fetch firewood, she would warn me, don't pick any dry wood from the fig tree or even around it. Why? I would ask, because that is a sacred tree. अब ऑथर की मदर जब भी उसको कहती थी फायरवुड कलेक्ट करके लाने के लिए, तो वो हमेशा उसको वार्न करती थी कि कोई भी जो सूखी हुई लकड़ी है वो उस फिग ट्री के नीचे से या उसके आसपास से नहीं लेकर आनी है. और जब ये ऑथर पूछती थी कि क्यों, तो उसकी मदर कहती थी बिकॉज दैट इज़ अ सेक्रेड और अ होली और पायस ट्री. शी वुड रिप्लाई, वी डोंट यूज़ इट, वी डोंट कट इट. हम ना उसको यूज़ करते हैं, ना उसको कट करते हैं, वी डोंट बर्न इट, और ना ही हम उसे जला सकते हैं, ठीक है. तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते थे वहाँ के लोग. एज अ चाइल्ड ऑफ कोर्स आई हैड नो आइडिया वॉट माई मदर वॉज टॉकिंग अबाउट, बट आई ओबेड हर. अब छोटे बच्चों में इतनी अकल नहीं होती है, उन्हें समझ नहीं आते हैं कई चीज़ें, लेकिन वो क्योंकि एक ओबीडियंट चाइल्ड थी, सो वो अपनी माँ की हर बात मानती थी और वो वैसा ही करती थी जैसे उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती थी. सो अबाउट 200 yards फ्रॉम द फिग ट्रीज देयर वाज अ स्ट्रीम नेम्ड कनुंगो. अब वो जो फिग ट्री थी उसके 200 yards, ठीक है, उसके पास में ही एक देयर वाज अ स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स एक नैरो रिवर, ठीक है, एक पतली सी नदी बहती थी और उस नदी का नाम था कनुंगो. इट्स वाटर वॉज सो क्लीन एंड फ्रेश दैट वी ड्रैंक इट स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीम. उसका पानी इतना साफ था, इतना फ्रेश लगता था, इतना क्लीन लगता था कि लोग जो है डायरेक्टली उस स्ट्रीम से पानी पी लेते थे. As a child, I used to visit the point where the water bubbled up from the bottom of the earth and formed a stream. और उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो सोर्स है जहाँ से वो स्ट्रीम शुरुआत होती थी उस स्ट्रीम की,
तो जब ये छोटी थी ऑथर तो ये वहाँ पे जाया करती थी. आई इमेजिन दैट वेरी फ्यू पीपल हैव बिन लकी इनफ टू सी द सोर्स ऑफ अ रिवर. और उसे ये भी लगता था कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि सोर्स ऑफ रिवर कहाँ पे है, और देखा भी नहीं होता है लोगों ने. उन्होंने सिर्फ नदी को देखा होता है, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको नहीं देखा होता है. सो शी काउंटेड हर सेल्फ रियली लकी टू हैव सीन द सोर्स ऑफ दिस रिवर. At the point where the stream came out of the ground, there were arrow roots, and along the stream were banana plants and sugarcane. अब जहाँ से वो स्ट्रीम ओरिजिनेट होती थी ग्राउंड में से, जहाँ से वो पानी बाहर आ रहा था, वहाँ पे बहुत सारे एरो रूट्स लगे हुए थे. ओके. और काफ़ी सारे बनाना प्लांट्स और शुगर भी थे स्ट्रीम के किनारे किनारे, विच वर टिपिकल क्रॉप फूड्स. और लोग उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे इन अ लार्ज अमाउंट. एरो रूट्स व्हेन कुक्ड आर स्टार्ची लाइक पोटैटोज़. और एरो रूट्स बिल्कुल पोटैटोज़ की तरह वैसे ही स्टार्ची हो जाते थे, ठीक है, जब उनको कुक किया जाता था. एंड ग्रो ओनली व्हेन वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर. और एरो रूट्स वहीं उगते थे जहाँ पे बहुत सारा पानी उन्हें मिलता था. At that time, they were planted all along the banks of small, slow-flowing streams. अब वो जो भी जितनी भी छोटी स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती थी, उनके किनारे ये अपने आप उग जाते थे. Their large green arching leaves were big enough for a small child such as me to sit underneath. और ये जो एरो रूट के प्लांट्स होते थे, ये नदी के किनारे उगते थे और इतने ऊंचे होते थे कि उनके नीचे कोई भी छोटा बच्चा आराम से उसकी शैडो में बैठ सकता था. When it rained, the silver drops of water would dance on the broad leaves above me and splash to the ground. अब वो जब भी उसके नीचे छुप कर बैठती थी और बारिश हो रही होती थी, तो बारिश की बूंदें ऐसे लगती थी जैसे एकदम सिल्वर ड्रॉपलेट्स गिर रही हों आसमान से, और वो उसके ब्रॉड लीव्स पर गिरती थी और फिर नीचे ज़मीन पे गिरती थी. वी ऑल्सो यूज़ दीज लीव्स टू फेच वाटर फ्रॉम द रिवर एंड ड्रिंक इट. और वो इतने बड़े पत्ते होते थे कि उनको उनमें पानी भर के कैरी करके घर तक ले जाते थे, या फिर डायरेक्टली उन लीव्स से पानी पी लेते थे. द वाटर लुक क्लीन एंड फ्रेश अगेंस्ट द स्पार्कलिंग ग्रीन लीव्स. वो पत्ते जब धुलने के बाद एकदम शाइन करते थे, और उसमें जो वो पानी कलेक्ट होता था स्ट्रीम का, तो वो और भी ज़्यादा फ्रेश और क्लीन नज़र आता था. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी टिल हियर. we'll be taking up the rest of it in the next class. Till then, you just read this chapter and mark all the difficult words and try to find out their meanings and write the difficult words and also the word meaning in your fair notebook and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.